بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خبر دنیا بھر سے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive۔ جاپان کی سیاست میں ہلچل، وزیر اعظم شگیرو ایشیبا نے دے دیا استعفی۔ حکمران جماعت میں پھوٹ سے بچنے کے لیے PM کے عہدے سے ہوئے مستعفی۔ لندن میں فلسطین کے حق میں مظاہرے، لندن پولیس نے 400 سے زائد افراد کو کیا گرفتار۔ روس کا یوکرین پر اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملے میں کم از کم 2 افراد ہلاک۔ دارالحکومت کیف میں ایک اہم حکومتی عمارت میں آگ لگ گئی۔ غزہ کے نہتے فلسطینی باشندوں پر اسرائیلی حملے جاری، تازہ حملوں میں 17 فلسطینی شہید۔ اسکول اور رہائشی خیموں کو بھی بنایا گیا نشانہ۔ نتنیاہو کو جھٹکا، اسرائیلی میڈیا نے بھی غزہ میں فلسطینیوں کی مشکلات پر حقائق پر مبنی رپورٹنگ شروع کر دی۔ چین نے خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور اہم پیش رفت کی، نئے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس کامیابی سے خلا میں روانہ کیے۔ اور ترکی کے بالک سر کے قریب 4.9 شدت کا زلزلہ، عوام میں خوف و ہراس۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ جاپان کے وزیر اعظم شگیرو ایشیبا نے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے حکمراں لبرل ڈیموکریٹک پارٹی میں پھوٹ سے بچنے کے لیے اپنا استعفی سونپ دیا ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم ایشیبا نے اتوار کو اپنی پارٹی کی جانب سے جولائی میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں تاریخی شکست کی ذمہ داری قبول کر کے بڑھتے ہوئے مطالبات کے بعد استعفی دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ معلومات جاپان کے NHK پبلک ٹیلی ویژن نے دی ہے۔ اکتوبر میں عہدہ سنبھالنے والے ایشیبا نے 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے اپنی ہی پارٹی کے زیادہ تر دائیں بازو کے مخالفین کے مطالبات کی مزاحمت کی تھی۔ ان کا یہ اقدام ان کی لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے قبل وقت قیادت کے انتخابات کرانے کے فیصلے سے ایک روز قبل سامنے آیا ہے، جسے اگر منظور کر لیا جاتا ہے تو ان کے خلاف ایک طرح کی تحریک عدم اعتماد ہوگی۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم آج ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ NHK نے رپورٹ کیا ہے کہ ایشیبا پارٹی کو مزید تقسیم سے روکنے کے لیے اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ جولائی میں ایشیبا کا حکمراں اتحاد ایک اہم پارلیمانی انتخابات میں 248 نشستوں والے ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہا، جس سے اس کی حکومت کا استحکام مزید کمزور ہو گیا۔ ان کا یہ فیصلہ ہفتے کے روز وزیر زراعت شنجیرو کوئیزومی اور ان کے سرپرست سمجھے جانے والے سابق وزیر اعظم یوشیہائیڈ سوگا سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے، جنہوں نے ایشیبا کو پیر کے ووٹ سے قبل مستعفی ہونے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے پہلے بھی اپنے عہدے پر برقرار رہنے پر اصرار کیا تھا اور ایک ایسے وقت میں سیاسی خلا سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا تھا جب جاپان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں امریکی ٹیرف اور معیشت پر ان کے اثرات، بڑھتی ہوئی قیمتیں، چاول کی پالیسی میں اصلاحات اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی شامل ہیں۔ LDP کی جانب سے گزشتہ ہفتے اپنی انتخابی مہم شکست کے جائزہ لینے کے بعد پیر کے نتائج سے پہلے قبل از وقت قیادت کے ووٹ یا ایشیبا کے استعفے کے مطالبات بڑھ رہے تھے، جس میں پارٹی کی مکمل تبدیلی کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔
लंदन पुलिस के मुताबिक फलस्तीन एक्शन ग्रुप के हक में एक मुजाहरे के दौरान 400 से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फलस्तीन एक्शन ग्रुप को बरतानिया में दहशतगर्दी के कवानीन के तहत कलअदम करार दिया जा चुका है। हफ्ते को कई सौ अफराद ने बरतानिया की पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा किया, जिनमें से कुछ ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था, मैं नस्लकुशी की मुखालिफत करता हूं, मैं फलस्तीन एक्शन की हिमायत करता हूं। दारुल हुकूमत की मेट्रोपॉलिटन फोर्स मीट ने लोगों को खबरदार किया था कि वो ममनुआ ग्रुप की वाज़ेह हिमायत करने वाले किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने में हिचकिचाहट नहीं करेगी। मीट ने हफ्ते की रात देर गए एक बयान में कहा कि मुजाहरे के सिलसिले में 425 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। ज्यादातर अफराद को एक ममनुआ तंजीम की हिमायत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। एक बरतानवी शहरी पॉल स्मिथ ने न्यूज एजेंसी को से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुजाहरे में मौजूद लोग दहशतगर्द नहीं हैं और इस पाबंदी को हटाना चाहिए। 62 साला नाइजिल, जो एक रिसाइकलिंग कंपनी के सीईओ हैं और जिन्होंने अपना पूरा नाम बताने से इनकार किया, ने कहा कि जुलाई में आयद करदा हुकूमती पाबंदी बिल्कुल नामुनासिब है। उन्होंने गिरफ्तारी से कबल एएफपी को बताया कि हुकूमत को मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश करने के बजाय नस्ल कुशी को रोकने पर ज्यादा वक्त सर्फ करना चाहिए। इस दौरान मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शर्म करो के नारे लगाए। हफ्ते के मुजाहरे से कबल 800 से ज्यादा अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिनमें से 138 पर इस तंजीम की हिमायत या इसकी हौसला अफजाई के इल्जाम आयद किए गए। ज्यादातर को 6 माह की कैद हो सकती है, लेकिन मुजाहरों के मुंतजिमीन को मुजरिम करार दिए जाने पर 14 साल तक की सजा भी हो सकती है। हफ्ते को एक अलग प्रो फलस्तीनी मुजाहरे में लंदन के दीगर हिस्सों में तकरीबन 20,000 अफराद ने सड़कों पर एहतजाज किया, तहम इन मुजाहरों में बहुत कम गिरफ्तारियां अमल में आईं। रूस ने इतवार की सुबह यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया, जिसमें कम से कम 2 अफराद हलाक और दारुल हुकूमत कैफ में एक अहम हुकूमती इमारत को आग लग गई। यूक्रेनी वज़रा की काबीना की इमारत की छत पर शोले और दारुल हुकूमत के ऊपर धुएं के बादल देखे गए। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक ड्रोन हमलों ने दारुल हुकूमत कैफ में कई बुलंदबाला इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। रूस ने यूक्रेन पर अपने 3.5 साला हमले को रोकने का कोई इशारा नहीं दिया और जंग खत्म करने के लिए सख्त शराइत आयद की हैं। यूक्रेनी काबीना की वज़रा की इमारत, जो कैफ के क़ल्ब में वाक़े एक वसी हुकूमती कॉम्प्लेक्स है, पर यह जंग का पहला हमला था। मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक हेलीकॉप्टर इमारत की छत पर पानी गिरा रहे थे, जबकि इमरजेंसी सर्विसेज जाए वक़ू पर पहुंची। पुलिस ने इमारत के इर्द गिर्द के इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म यूलिया स्वरन्निको ने टेलीग्राम पर कहा कि दुश्मन के हमले से छत और बालाई मंजिलें मुतासिर हुई। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम इमारतों की बहाली करेंगे, लेकिन हम खोई हुई जानें वापस नहीं ला सकते। दुश्मन हर रोज हमारे लोगों के पूरे मुल्क में दहशतज़दा और कत्ल कर रहा है। यूक्रेन की फिजाइया के मुताबिक रूस ने हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक कम से कम 805 ड्रोन्स और 13 मिसाइल दागे, जो इस जंग का सबसे बड़ा हमला था। गजा के निहत्ते फलस्तीनी बाशिंदों पर इसराइल के हमले जारी हैं। आज सुबह इसराइली फजाइया ने गजा के स्कूल और रिहायशी खैमों पर बमबारी की है। इस बमबारी में कम से कम 17 अफराद शहीद हो गए। इससे पहले इसराइली फौज ने हफ्ते के रोज गजा सिटी पर अलसोसे नाम की एक इमारत को फजाई हमला करके तबाह ताराज कर दिया था और हमास पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इमारत के करीब धमाका खैज मवाद नस्ब किया और इस निगरानी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इससे कबल इसराइली फौज ने गजा सिटी में इमारत अल-रो या और इसके खैमों में पनागजीनों को फौरी तौर पर खाली करने का इंतबाह जारी किया था। फौज ने एक बयान में कहा है कि अल-रो या इमारत के रिहायशियों और इसके करीब खैमों के मकीनों को, जो बेरूत चौक और अरब लीग स्ट्रीट में वाक़ हैं, मुतल्ला किया जाता है कि दिफाई फौज इमारत पर जल्दी हमला करेगी, क्योंकि इसके अंदर या इसके करीब हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। बयान में उन्हें हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर इमारत को जुनूब की तरफ खान यूनुस में अलमवासी के इंसानी हमदर्दी के इलाके की जानिब खाली कर दें। दरिया असना गजा की पट्टी में फलस्तीनी वजारत सेहत ने हफ्ते के रोज गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भूख और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 6 नई हलाकतों की इत्तला दी, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। गजा की पट्टी में जंग इन दिनों इसराइली खबरों पर मुख्तलिफ नजर आने लगी है। पिछले 2 सालों में ज्यादातर इसराइल के टेलीविजन स्टेशनों ने गजा के मसाइब पर बहुत कम तवज्जो दी। इसराइली मीडिया अभी तक नाज़रीन को इसराइली बहादुरी, यरगमालियों के खानदानों की अजियत और जंग में फौजियों की हलाकतों के बारे में खबरों का एक मुस्तकिल सिलसिला दिखाती रही है, लेकिन अब ये बदल रहा है। हालिया महीनों में कुछ इसराइली टेलीविजन स्टेशनों ने ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की तस्वीरें और फ़लस्तीनियों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में चंद संजीदा हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स शेयर करना भी शुरू कर दी है। ये
लतीफ तब्दीली उस वक्त सामने आई जब इसराइल को जारी जंग पर आलमी गम गुस्से का बड़े पैमाने पर सामना है, और ये इस बात पर गहरी तकसीम की भी अक्कासी करता है कि लोग चाहते हैं कि गजा में फौजी कार्रवाई को रोका जाना चाहिए। हालांकि बढ़ते हुए एहतजाज और मीडिया कवरेज का इसराइल की पॉलिसियों पर बहुत कम असर हुआ है। इसराइल की इब्रानी यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के प्रोफेसर ईरान अमसालम ने कहा कि यह सिर्फ गजा की सूरत हाल के बारे में सही मानों में परवाह नहीं है, बल्कि इसराइली नुक्ते नज़र से भी क्या हम इस जंग के मकासद के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गजा जंग की मुखालिफत में जारी एक अवामी तहरीक को बड़ी हद तक नज़रअंदाज कर दिया है। इस एहतजाज और मुखालिफत का मकसद यरगमालियों की वापसी भी है। मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की जिम्मेदारी है कि वो गजा में नस्लकुशी को रुकवाएं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग गजा के लिए इमदाद लाने वाले फ्लोटिला में मौजूद हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी कानून के होते हुए इसराइली सदर के साथ मुमकिना मुलाकात से कबल बरतानी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गजा में नस्लकुशी पर एक तवील खामोशी मौजूद है। ग्रेटा थनबर्ग ने बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दिया है कि वो इसराइली सरबराह से मुलाकात न करें। ग्रेटा थनबर्ग ने मजीद कहा कि दुनिया जाग गई है और लोगों ने गजा के लोगों का बराह रास्त कत्लेआम मुस्तरद कर दिया है। दुनिया भर में शहरी उठ खड़े हुए हैं, लेकिन मंजर से वो लोग गायब हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि इस नस्लकुशी को फौरी रुकवाएं। यरूशलेम में अब तक के सबसे बड़े मुजाहिरों में से एक में दसियों हजार अफराद ने वज़ीर-ए-आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर जमा होकर गजा में जंग के खात्मे का मुतालबा किया। गजा में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद के खानदानों की नुमाइंदगी करने वाले फोरम ने हफ्ते की शाम नेतन्याहू से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर एक मुज़ाकराती टीम भेजें ताकि जंग के खात्मे और तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए बातचीत की जाए। फोरम के मुताबिक हमास के सालिसों की तरफ से पेश करदा जंगबंदी तजवीज़ पर इसराइल की तरफ से 3 हफ्तों तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। इस फोरम ने नेतन्याहू की हुकूमत से मौजूदा तजवीज़ को कबूल करने और तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए मुआहदे पर मुज़ाकरा शुरू करने की अपील की है। तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है और इस दौरान इब्तदाई तौर पर 10 जिंदा यरगमालियों का फ़लस्तीनी कैदियों के बदले तबादला किया जाएगा। दूसरी जानिब हमास ने बैनुल-अक़वामी सालिसों की तरफ से पेश करदा जंगबंदी की तजवीज़ पर अपने इत्तेफाक को दोहराया है। हमास ने एक अलग बयान में कहा कि वो ऐसी किसी भी तजवीज़ के लिए तैयार है जो मुस्तकिल जंगबंदी, गजा से इसराइल के मुकम्मल इनक़िला, इंसानी इमदाद की तरसील और सालिसी मुज़ाकरात के जरिए यरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का बाइस बने। ताहम नेतन्याहू एक जामे मुआहदे पर जोर दे रहे हैं जिसमें तमाम यरगमालियों को एक साथ रिहा किया जाए। इसराइली हुकाम के मुताबिक गजा में मौजूद 48 यरगमालियों में से सिर्फ 20 जिंदा हैं। नेतन्याहू हमास के हथियार डालने और गैर मुसल्लह होने पर भी जोर दे रहे हैं और चाहते हैं कि इसराइल गजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखे। इसराइली नशरियाती इदारे के मुताबिक सालिसी करने वाले ममालिक अमेरिका, कतर और मिस्र चंद दिनों में एक नई तजवीज़ भी पेश करने जा रहे हैं जो तमाम यरगमालियों की रिहाई और जंग के खात्मे के मुआहदे को यकीनी बना सकती है। चीन ने कलाई तहकीक के मैदान में एक और अहम पेशरफ करते हुए नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कामयाबी से खला में रवाना कर दिए हैं। ये लॉन्च हफ्ते की सुबह सिचुआन के जेचोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किए गए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक रॉकेट लॉन्ग मार्च 2C के जरिए भेजे गए ये सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी, कुदरती वसाइल की तहकीक और आफात से मुताल्लिक मालूमात जमा करने में इस्तेमाल किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक तमाम सैटेलाइट्स अपने मदार में कामयाबी के साथ दाखिल हो गए और मामूल के मुताबिक सिग्नल्स भी भेजना शुरू कर चुके हैं। चीन की जानिब से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की यह खेप न सिर्फ मुल्की ज़रूरियात के लिए कारआमद साबित होगी बल्कि ज़राअत, जंगलात, आबी ज़खायर और शहरी मनसूबाबंदी के शोबों में भी मुआवनत फराहम करेगी। खलाई माहिरीन का कहना है कि यह मिशन चीन की तेजी से तरक्की करते हुए खलाई प्रोग्राम का हिस्सा है जिसके तहत बीजिंग आइंदा बरसों में मजीद दर्जनों सैटेलाइट खला में भेजने का इरादा रखता है। इस मनसूबे का मकसद खलाई टेक्नोलॉजी में खुद किफालत हासिल करना और आलमी सतह पर खलाई ताकत के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करना है। वाज़ेह है कि चीन ने हालिया बरसों में सैटेलाइट्स नेविगेशन, चांद की सतह पर तहकीक और मरीख पर मिशन के जरिए अपनी खलाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा किया है। अमेरिका के मिनेसोटा के ट्विन सिटीज इलाके में हुई हवाई अड्डे के करीब एक हेलीकॉप्टर हादसे में शिकार हो गया जिसमें आग लग गई। अफसरों ने तस्दीक की है कि इस हादसे में सभी सवार की मौत हो गई है। हेलीकॉप्टर की रॉबिन्सन आर के तौर पर पहचान की गई है। ये एयरलिक हवाई अड्डे के मगरिब में हादसे का शिकार हुआ। मुकामी वक्त के मुताबिक ये वाक़या करीब 2:45 पर पेश आया। मौके पर पहुंचे हंगामी अमले ने देखा कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह आग में जल रहा था और इसमें सवार कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं था।
तुर्की के मगरबी सूबे बाली के सीर के करीब इतवार 7 सितंबर को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:35 पर आया, जिसकी शिद्दत के स्केल पर 4.9 रिकॉर्ड की गई। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज बालिकेसिर शहर से तकरीबन 56 किलोमीटर दूर था। इब्तदाई रिपोर्ट्स में जलजले की गहराई का दुरुस्त तयन नहीं हो सका, ताहम माहिरीन का कहना है कि झटके सतह जमीन के करीब थे, इसी वजह से जलजला ज्यादा शिद्दत से महसूस किया गया। मुकामी शहरियों ने बताया कि जलजले के बाद लोग खौफजदा होकर घरों, दफातर और दुकानों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके न सिर्फ बालिकेसिर बल्कि करीबी इलाकों में भी वाज़ेह तौर पर महसूस किए गए। रेस्क्यू और हंगामी टीमों को फौरी तौर पर मुतासरा मकामात पर रवाना कर दिया गया है, ताहम अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। याद रहे कि तुर्की जलजलों के लिए हसास खित्ते में वाक़ है। रवां साल के आगाज में भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरमियाने दर्जे के जलजले आ चुके हैं, जिनसे अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें और सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मिलने वाली मालूमात पर इन्हिसार करें। आज यानी 7 सितंबर इतवार को हिंदुस्तान में रवां साल का सबसे तवील चांद ग्रहण नजर आएगा। इस चांद ग्रहण का दीदार दुनिया की 85% आबादी कर सकेगी। ये हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तो देखा ही जाएगा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी नजर आएगा। शुमाली और जनूबी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वहां चांद के तुलू होने से पहले ही चांद ग्रहण खत्म हो चुका होगा। काबिल जिक्र है कि जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है तो सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से जमीन का साया चांद पर पड़ता है और फिर चांद ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलता है। नेहरू सेंटर प्लानेटोरियम मुंबई के डायरेक्टर अरुण प्रांशे के मुताबिक चांद ग्रहण 7 सितंबर की रात तकरीबन 9:58 से शुरू हो जाएगा। रात में तकरीबन 11:01 पर मुकम्मल चांद ग्रहण होगा और 11:42 तक ये अपने उरूज पर नजर आएगा। इस दौरान आपको ब्लड मून यानी सुर्ख रंग का चांद देखने को मिलेगा। 7 सितंबर की देर शब यानी 8 सितंबर को 1:26 पर यह चांद ग्रहण खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान में आने वाले हालिया तबाहकुन जलजले ने मुल्क के कई सूबों को लर्जा कर रख दिया है। हुक्काम के मुताबिक जलजले के नतीजे में सैकड़ों अफराद जहां बहक और जख्मी हुए, जबकि हजारों मकानात मलबे का ढेर बन गए। सबसे ज्यादा मुतासर इलाके वो है जहां पहले से बुनियादी सहूलतों की शदीद कमी थी। जलजले के बाद मुतासरा मुकामात पर जिंदगी अजीरन हो गई है। जिंदा बच जाने वाले अफराद खुले आसमान तले रातें गुजारने पर मजबूर हैं। घरों के तबाह होने के बायस खवातीन और बच्चे शदीद सर्दी, भूख और बीमारियों के खतरे से भी दो चार हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि पीने के साफ पानी, खाने पीने के सामान और अद्वियात की भी शदीद किल्लत है। इमदादी इदारे और रेस्क्यू टीमें मुतासर इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, मगर दुश्वार गुजार रास्ते और तबाहशुदा सड़कें इमदादी सरगर्मियों में रुकावट बन रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रॉस और दीगर बैनुल अक़वामी तंजीमों ने हंगामी इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। इन इदारों की जानिब से खैमे, कंबल और तिबी सामान पहुंचाए जा रहे हैं, ताहम मुतासरीन के मुताबिक ये इमदाद उनकी ज़रूरियात के मुकाबले में नाकाफ़ी है। माहिरीन का कहना है कि यह जलजला हालिया बरसों में अफगानिस्तान को लगने वाले बदतरीन जलजलों में से एक है। हजारों खानदान बेघर हो चुके हैं और उन्हें फौरी बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की ज़रूरत है। अफगान हुक्काम ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएँ, ताकि मजीद जानी नुकसानात को रोका जा सके और मुतासरा अफराद को दोबारा मामूल की ज़िंदगी की तरफ लौटने में सहूलत फराहम हो सके। और आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। जापान की सियासत में हलचल, वजीर आजम शिगेरो इशिबा ने दे दिया इस्तीफा। हुक्मरान जमात में फूट से बचने के लिए पीएम के ओहदे से हुए मुस्तफी। लंदन में फलस्तीन के हक में मुजाहिरे, लंदन पुलिस ने 400 से ज्यादा अफराद को किया गिरफ्तार। रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक। दारुल हुकूमत कैफ में एक अहम हुकूमती इमारत में आग लग गई। गजा के निहत्ते फलस्तीनी बाशिंदों पर इसराइली हमले जारी, ताजा हमलों में 17 फलस्तीनी शहीद। स्कूल और रिहायशी खैमों को भी बनाया गया निशाना।
नेतन्याहू को झटका, इसराइली मीडिया ने भी गजा में फलस्तीनियों की मुश्किलात पर हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। चीन ने कलाई तहकीक के मैदान में एक और अहम पेशरफ्त की, नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कामयाबी से कला में रवाना किए। और तुर्की के बालिकेसिर के करीब 4.9 शिद्दत का जलजला, अवाम में खौफ व हिरास। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।